ठीक है। तो हमारी क्लास जो स्टार्ट हो रही है वो है एप्टीट्यूड से। एप्टीट्यूड का जो एक पार्ट है दैट इज फाउंडेशन वैल्यूज। एप्टीट्यूड वैसे हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ फाउंडेशन वैल्यू पर पढ़ना है। फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज, ये आज का चैप्टर हमारा ये है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नो वेरी वेल। सर्विस, फाउंडेशन वैल्यूज फॉर सिविल सर्विस। सिविल सर्विस में कैसे कैसे फाउंडेशन वैल्यू आएंगी उस चीज़ को भी हम यहाँ पर देखेंगे और उसको मेंशन करेंगे, ठीक है। उन चीज़ों को सभी को पढ़ेंगे। एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशन वैल्यूज के इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इथिकल फाउंडेशन सिस्टम। अगर हम फाउंडेशन सिस्टम की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंड व्हाई, व्हाट इज एप्टीट्यूड, आई टोल्ड यू अबाउट व्हाट इज एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड इज बेसिकली एबिलिटी, इंटेलिजेंसी एंड ट्रेनिंग, स्किल्स, वट एवर यू राइट कह सकते हैं आप, उसमें सारी चीज़ें, नॉलेज, ये सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं। उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो बेसिकली एक सिविल सर्विस होने के लिए, आप अगर सिविल सर्वेंट हैं तो आपको क्या क्या जरूरी, द सिविल सर्विसेज इज अ वाइटल कंपोनेंट एनी मॉडर्न गवर्नमेंट, so responsible for the efficient and effective deliver public of the public services to the citizen of the country। तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप पब्लिक के लिए क्या करेंगे, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी एंड अकाउंटेबिलिटी, दैट इज कॉल्ड फाउंडेशन वैल्यू ऑफ द सिविल सर्विसेज। And foundational value of the civil services is a very important component, like for a civil servant. So that's why you have to must know about the civil servant must process certain aptitude and foundation value to carry out the duties and effectively. If you want to do effective work in your duty, on your duty, so that's why you have to know exactly what is the values for the civil services। तो दैट इस चीज़ को थोड़ा सा हमें जानना है, इन चीज़ों को समझना है। सो आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। सो इन दिस आर्टिकल वी विल think, we will study about the key aptitudes and necessary key aptitude and values necessary for the success in civil services. If you be after some time you are if you be an IS officer, so what will you do and how kind of job you will do, and what is your duty responsibility and response, how you are responsive, how you are excellent, how are you are expert for the civil servant. So that's why because after being an IS officer or IPS officer, IRS officer, you have a lot of responsibility, accountability to answer to the public, okay। So that's why you should know exactly कि suppose कि sometime you have to take hard decision, and you have to make decision, nobody is telling you, nobody is there to tell how to take decision, how to make decision, but you have to take immediate, you have to make a decision and take decision. So if you want to take any kind of decision or make decision, so you should know exactly, if you know about the ethics, about the foundational values, so you can take easily, you can make easily your decision and take decision, okay। So that would be effective, and your outcome also will very effective, okay। So that kind of things are very important to know. So let's start with this topic, okay, and we will discuss on it. So first of all, aptitude and foundation value of civil services. So you know, aptitude is a natural talent and ability that someone has for a particular activities or a skill. So and you know, it is something that person is a naturally good, it has the potential to be good, and often without needing to be taught or trained। कभी कभी इस चीज़ को कभी कभी ऐसा होता है, हर चीज़ के लिए, हर एक पॉइंट के लिए आपको पढ़ाया नहीं जाता, बट ये बताया जाता है कि सिचुएशन में अगर आप आते हो तो कैसे कैसे डिसीजन लोगे, कैसे कैसे चीज़ें करेंगे। तो उस टाइप की चीज़ों को हम यहाँ पर चीज़ों को देखेंगे, एग्जामिन करेंगे और पढ़ेंगे उस चीज़ को, ठीक है। जनरली मैंने आपको कल चीज़ें एप्टीट्यूड के बारे में बताया था, कुछ बाय बर्थ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो चीज़ें आपको बदलती हैं और जो चीज़ें आपको समझाती हैं। तो इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा इंटरेस्ट, स्किल, एप्टीट्यूड
ट्रेनिंग, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया कि इससे आपकी एबिलिटी बढ़ती है और स्टैंडर्डाइज बढ़ता है, जिससे आप उस चीज़ को असेसमेंट कर पाते हैं, सारी चीज़ें आपकी ठीक होती हैं। ठीक है। But before starting, before beginning to foundation value of civil services, we should know different between different difference between एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड। ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं, कई बार इससे क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। तो इस चीज़ के बारे में अगर इसके बारे में अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंस कभी आ जाए क्वेश्चन, या कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है, तो आप उस चीज़ को भी डिफरेंशिएट कर पाएँ, देन वी विल स्टार्ट फाउंडेशन वैल्यूज। तो यू नो वेरी वेल एटीट्यूड क्या है। एटीट्यूड रिफर्स हाउ यू फील अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन। लाइक डिसलाइक, मैंने पहले बताया था कि लाइक डिसलाइक है ये, लाइक डिसलाइक। और आप क्या फील करते हैं, समटाइम आपके बिहेवियर पे आ जाता है, चीज़ें दिख जाती हैं, कई बार नहीं दिखती हैं, तो उन चीज़ों को भी यहाँ रखते हैं। तो बेसिकली दिस इज अ आइडिया, दिस इज आइडिया, आइडियोलॉजी। इट कुड बी आइडियोलॉजी हो सकता है, आपकी थिंकिंग हो सकती है, किसी टास्क को लेकर हो सकता है जो आपके अंदर एक। लेकिन इस एटीट्यूड से कई बार ऐसा होता है कि दोनों चीज़ें, जब आपको टास्क मिलता है तो टास्क में आपका एटीट्यूड तो दिखता ही दिखता है। एटीट्यूड कहाँ से आ रहा है, आपके वैल्यू से आ रहा है, वैल्यू से आपका एटीट्यूड बनता है। तो इस वैल्यू से आपका एटीट्यूड बना, और एटीट्यूड से हो सकता है, एटीट्यूड से आप जब जो आपके काम कर रहे हैं, जो चीज़ें आप बना रहे हैं, उस एटीट्यूड से ही साथ आपको यहाँ पर एप्टीट्यूड भी आपका बढ़ना शुरू हो जाता है। एप्टीट्यूड, ओके। सो ये जो चीज़ है, एप्टीट्यूड वाली चीज़ें हैं जो आपके साथ, तो इस चीज़ को भी हम थोड़ा सा देखेंगे। एप्टीट्यूड से जब काम करते करते रहते हैं, तो उसकी एक स्किल नॉलेज आपको आने लगती है, स्किल आपका बढ़ता है और नॉलेज आता है। इस नॉलेज और स्किल से, या ट्रेनिंग इसकी दी जाती है जब आपको, तो उससे आपका कहीं ना कहीं एप्टीट्यूड भी बढ़ता है, यानी पॉसिबल होता है, डेवलप होती हैं चीज़ें। तो आपको अगर डिफरेंस समझ में आता है, तो डिफरेंस के बारे में हम थोड़ा सा इसके बारे में लिखेंगे, इस चीज़ों को समझेंगे। देयर आर वाइल एटीट्यूड, आपको लिख इसमें कर लेना है, वाइल एटीट्यूड refers to how you feel about, this is a feeling, feel about a particular person, organization, an organization or society, एंड सोसाइटी ऑल्सो इन्फ्लुएंस योर एटीट्यूड। वहाँ तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो इस चीज़ के बारे में देखेंगे। बट आपको एक बट आपको अगर टास्क दिया गया है, टास्क को परफॉर्म करना है, तो यू शुड नीड एप्टीट्यूड। आपको एप्टीट्यूड की ज़रूरत है, एंड एप्टीट्यूड यहाँ पर आता है, तो ये स्किल भी है। तो आपको जब इसमें काम करते हैं, परफॉर्म अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ टास्क, तो इट इज़ पॉसिबल टू, इट इज़ possible to develop both aptitude and attitude। ये दोनों पॉसिबल है कि दोनों आपके डेवलप होंगे चीजें साथ ही साथ। समझ आ रहा है? तो ये है व्हाट व्हाइल एप्टीट्यूड इज लिंक्ड टू द कंपेटेंस, जो आपका एप्टीट्यूड है, एटीट्यूड लिंक टू द करेक्टर एंड वर्च्यू। आपकी दोनों चीजें कैसे कैसे लिंक होती हैं यहाँ पर। जब एप्टीट्यूड, while aptitude is linked to competence, so attitude is linked, ये एप्टीट्यूड आपका एप्टीट्यूड से लिंक होता है, वो सॉरी कंपिटेंस से लिंक होता है, एंड एटीट्यूड इज लिंक्ड टू करेक्टर। आपका करेक्टर बताता है, करेक्टर आर वर्च्यू। दिस इज द डिफरेंट थिंग्स। एप्टीट्यूड इज लिंक्ड टू कंपिटेंस, बट एटीट्यूड इज लिंक्ड टू करेक्टर्स आर वर्च्यू। So this is the difference between them. And now
the while character, virtue and moral ideas are supported by attitude. So aptitude decide the whether person will require a necessary skill to complete the task. जहाँ की जबकि आपका जो करेक्टर है, जो करेक्टर है, वर्च्यू है, मोरल आइडियाज है, सपोर्टेड बाय द एटीट्यूड, ये एटीट्यूड सपोर्ट करता है. बट आप अगर कोई काम करते हैं, एप्टीट्यूड डिसाइड वेदर द पर्सन विल एक्वायर, पर्सन को क्या जरूरत है, नेसेसरी टू स्किल टू कंप्लीट द टास्क, टास्क को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है, उसके लिए आपको एप्टीट्यूड की जरूरत है. ठीक है. एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड इज बोथ मेंटल एंड फिजिकल, कुड बी, एंड साथ ही साथ इसके देखिए एटीट्यूड इज सोलली मेंटली. अब एटीट्यूड पूरा का पूरा आपका मेंटली अंदर है, लेकिन एप्टीट्यूड दोनों चाहिए. यस्टरडे आई टोल्ड यू अबाउट द फिजिकल एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड एंड मेंटली, बोथ दोनों काम करते हैं. अगर फिजिकली आप फिट हैं तो आप काम कर पाएंगे, आप परफॉर्म अच्छा कर पाएंगे ड्यूटी को. अगर फिजिकली आपको कहीं जाना है, कुछ काम करना है, फिजिकली काम, यू हैव शुड मूव, या आपको मूव करना पड़ेगा. मूव करते हैं तो you need a physical health, and physically fit you should know, you should physically fit, and you must be also mentally fit. तो आपको दोनों चीज़ों को जरूरी है इसमें, तो दोनों चीज़ों को हम जानेंगे तो दोनों को यहाँ पर हम इसमें रख सकते हैं. बट अब यहाँ पर आता है कि एक एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड और फाउंडेशनल वैल्यूज यहाँ से अब स्टार्ट कर सकते हैं. इस चीज़ को जब हम यहाँ से जानेंगे, थोड़ा सा अब समझें अगर हम इसको, तो आपको यहाँ से फाउंडेशन वैल्यू से पहले थोड़ा सा एक चीज़ों को, जैसे मैंने एक चीज़ बताई कि एप्टीट्यूड आपको क्यों जरूरत है. व्हाई रिक्वायर एप्टीट्यूड फॉर द सिविल सर्विस सर्वेंट, व्हाट आर रिक्वायर्ड एप्टीट्यूड, aptitudes for a civil servant. Several aptitudes are important for success in the civil service. Some key aptitudes जो आपके पास हैं, पहला नंबर हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके जब भी आप जॉब करें, कोई भी जॉब हो, चाहे आप छोटी से छोटी जॉब करें या बड़ी से बड़ी, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ये आपके अंदर एबिलिटी आ जाती है. बिकॉज बिना किसी में चैलेंज के कोई काम है ही नहीं. सो इफ़ यू हैव एप्टीट्यूड, आपके एप्टीट्यूड अच्छे हैं, आप एबल हैं उस चीज़ के, आप योग्य हैं, आप नॉलेजेबल हैं, आप स्किल्ड हैं, आप ट्रेंड हैं, तो you can solve easily. Civil servants are often faced some complex problems that require a creative and innovative solutions that you trained also, and you know how to solve the problem. So you need to have a strong problem solving skill to identify the address and challenges as they rise. जो आपके अराइज होते हैं, जो क्वेश्चंस, जो प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं, वो आपके अंदर ट्रेंड किया जाता है, वो आपको समझाया जाता है, वो आपको पढ़ाया जाता है, वो आपको बताया जाता है. उससे क्या होता है, आपके अंदर एक इनोवेटिव आइडियाज आने की एक कैपेबिलिटी आ जाती है, आपके अंदर वो क्वालिटी डेवलप होती है, वो करेक्टर बनता है, और वो चीज़ों से आप धीरे 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 उस चीज़ को सॉल्व करते हैं. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पर ठीक होता है. इट मीन्स आप लिख सकते हैं civil servants are often faced with complex problems that require creative and innovative solution, require creative and इनोवेटिव सॉल्यूशन. इन दोनों चीज़ों को हम यहाँ पर लेके आएंगे. अब यहाँ से इसलिए आ रहा है आपके पास ये क्रिएटिव इनोवेटिव सॉल्यूशन, बिकॉज यू नीड टू स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके अंदर होनी चाहिए. स्किल है जिससे कि आप उस चीज़ को, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सके एंड एड्रेस द चैलेंजेस, और चैलेंजेस को एड्रेस कर सके. as they rises. ये एक
क्वालिटी आ जाती है आपकी। अगर एप्टीट्यूड आपके अंदर है तो ये क्वालिटी, एप्टीट्यूड मीन्स एबिलिटी, मैं सबसे पहले बताया है, ये नॉलेज है, एप्टीट्यूड है, ट्रेनिंग है, एबिलिटी है, ये एक ही चीज, सिनोनिम्स है इसके सारे के सारे। तो इस चीज को यहाँ से यहाँ इस चीज को देखो। दूसरा पॉइंट यहाँ, एक तो ये आपके अंदर आ जाता है, क्वालिटी आ जाता है, करेक्टर बन जाता है। नंबर टू इज, नंबर टू क्या बनेगा, नंबर टू की बात करते हैं तो क्रिटिकल थिंकिंग। Civil servant must be able to analyze and evaluate the information to make informed decision. क्रिटिकल थिंकिंग इसलिए कि सम टाइम ऐसे ऐसे केसेस आते हैं आपके सामने, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं, उस टाइम पे अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है आपकी तो आप कैसे डिसीजन ले पाओगे। तो क्रिटिकल थिंकिंग बहुत जरूरी है। इट मींस सिविल सर्वेंट मस्ट बी एबल टू एनालाइज, analyze and evaluate information to make informed decisions. Yes. सॉरी। सो ये थोड़ा सा इस चीज को समझना है, क्रिटिकल थिंकिंग क्यों जरूरी, मस्ट बी एबल टू एनालाइज एंड इवेल्युएट द इंफॉर्मेशन टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन, जैसे डिसीजन बनाना हो। द रिक्वायर्स एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकल एंड टू कंसीडर द मल्टीपल, जो आपकी प्रास्पेक्टिव्स हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रास्पेक्टिव हो सकते हैं, मल्टीपल प्रास्पेक्टिव को आप यहाँ पर इस चीज को थोड़ा सा आपको ये समझना है कि कैसे कितने भी मल्टीपल पर्सपेक्टिव हों उन सभी को कंसीडर कर सके और उसको क्रिटिकल डिसीजन उस पर ले सके। क्रिटिकल थिंकिंग आपकी होनी बहुत जरूरी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, नंबर टू एप्टीट्यूड इसलिए जरूरी। नंबर थ्री इज कम्युनिकेशन स्किल, बहुत नीड है कम्युनिकेशन स्किल। इसकी भी एक एबिलिटी होती है। आप देखो किसी किसी कम्युनिकेशन से आप बड़े हर्ट होते हैं, किसी कम्युनिकेशन से आपको बड़ा अच्छा लगता है, किसी किसी की लगता है बातें सुनते ही जाएं सुनते ही जाएं सुनते जाएं। ऐसे बहुत सारे आजकल हो चुके हैं लोग जिनकी बातें आपका सुनने का मन करता है, यूट्यूब से हटने का मन नहीं करता। आप बहुत लोग देखते हैं, भले वो काम की चीज़ हो नहीं हो, बट कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा होता है जब वो बात करते हैं, जब वो अपना वो करते हैं, आपके सामने कोई बात रखते हैं तो आपको लगता है कि बस यही भगवान। जैसे मोदी जी को देख लो, मोदी जी इज अ बेस्ट स्पीकर। जब वो बात करते हैं, जब बोलते हैं, कम्युनिकेशन स्किल है उनका, ऐसा लगता है कि आज ही घर पे आ जाएंगे, आज यही अपने हाथ से खाना खिलाएंगे हमको। इनके बिना तो हम खाना खा ही नहीं पाएंगे, इनके बिना तो हम भूखे ही मर जाएंगे, ऐसी चीज़ें हैं। और बस हम क्या करते हैं, उनकी भाषण को सुन के सीधा उन्हीं को वोट डाल देते हैं। वो बात अलग है कि अच्छा काम कर रहे हैं, अगर नहीं भी अच्छा काम कर रहे तो, लेकिन बट उनकी जो एक स्टाइल है बोलने का, जो चीज़ें हैं वो सुनने का मन करता है, वो चीज़ें करने का मन करता है कि यार क्या बात है। तो कम्युनिकेशन स्किल सिविल सर्वेंट की भी ऐसी होनी चाहिए। एक कम्युनिकेशन वैसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक ऐसा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लगे, जिसमें कि रिस्पॉन्सिव है ये सिविल सर्वेंट, ये लोगों के लिए काम करते, जब लोगों से बात करे फील्ड पर,
जब आप फील्ड पे जाओ तो ऐसा लगना चाहिए कि यार आप उनके लिए जी रहे हो। वैसे भी आपको पब्लिक के लिए ही रखा जाता है ना। तो सिविल सर्वेंट्स need to be able to communicate effectively with a wide range of people। ये आपके अंदर चीजें आएंगी। जब ये आ जाएंगी तो और इसमें साथ हैं इंक्लूडिंग अदर गवर्नमेंट्स एम्प्लॉय, इलेक्टेड ऑफिशियल, जैसे भी ये सारी चीज़ें हैं इस पे, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर ध्यान देंगे। उन सभी चीज़ों को अगर हम यहाँ पर पढ़ें तो उन्हें हमें चीज़ों को कैसे ऑफिशियल, इलेक्टेड ऑफिशियल कैसे, जनरल पब्लिक के साथ कैसे, क्या रिक्वायर्ड होना चाहिए आपके साथ साथ कम्युनिकेशन के साथ साथ यहाँ पर राइटिंग स्किल, जब आप लेटर लिखें किसी के लिए या कुछ ऐसा, वो भी स्किल, वो भी कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट है। राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये तो गई कम्युनिकेशन की, लेकिन कम्युनिकेशन में एक पार्ट और बचता है, लिसनिंग। लिसनिंग स्किल भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप बोल रहे हो, लिख दे रहे हो, लेकिन दूसरे की सुन नहीं रहे हो, तो लिसनिंग भी पावर आपके अंदर होनी चाहिए। लिसनिंग एबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिसनिंग एक्टिवली होना चाहिए आप इन चीज़ों के साथ साथ, जिससे लोगों के साथ आप एम्फाइज हो सके, एम्फेसाइज, तो एम्पैथाइज विद अदर्स, आप उस चीज़ को समझ सकें, उस चीज़ को आप उनसे को रिलेट कर पाएँ, जिससे उन्हें लगना चाहिए कि यार ये अपना ही बंदा है, ये हमारे लिए काम कर सकता है। नंबर 4, आप एक ब्यूरोक्रेट हो, आप अपने लिए नहीं जी रहे हो सिर्फ अकेले, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से चलना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, एक टीम के साथ काम करना आना चाहिए। सिविल सर्वेंट ऑफन वर्क ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, साइमल्टेनियसली मस्ट बी एबल टू मैनेज देयर टाइम एंड रिसोर्सेज इफेक्टिवली, जैसे मैंने कल बताया कि टाइम मैनेजमेंट हो, कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, हार्ड वर्कर होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो उसके अंदर आ रही हैं, एक दूसरे से रिलेशन, कोऑपरेटिव रिलेशन बनाना आना चाहिए, कोलैबोरेट करना आना चाहिए, दैट काइंड ऑफ थिंग्स यू शुड नो हाउ टू डू। तो उन चीज़ों के अंदर आना चाहिए। दूसरी इसके बाद फिफ्थ पॉइंट इज एडॉप्टिवली। एडॉप्टेबिलिटी, आपके अंदर किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने की, अडॉप्ट करने की भी आपके अंदर आए। कोई अगर आप ट्रेनिंग दे रहा है, कोई चीज़ें अडॉप्ट कर लो, चीज़ें अच्छी हैं तो अडॉप्ट करना चाहिए, नहीं है तो छोड़ देना चाहिए। तो अडॉप्टिव आपके अंदर इन्वायरमेंट होना चाहिए, एक डायनेमिक। एक सिविल सर्वेंट जो है उसको मस्ट बी एबल टू अडॉप्ट चेंजिंग सर्कमस्टांसेस एंड प्रायोरिटी, द रिक्वायर्ड फ्लेक्सिबिलिटी एंड एबिलिटी टू लर्न न्यू थिंग्स क्विकली। कितनी जल्दी आप समझ पा रहे हैं, कितनी जल्दी आप, जैसे मीटिंग हो रही है, सपोज करो मीटिंग में जैसे योगी जी टाइप के अगर लोग हैं मीटिंग में, तो आप जानते हैं योगी जी बीच में पकड़ लेते हैं, बहुत सारी स्टडी करके बैठते हैं जब आपके सामने आते हैं मीटिंग में कि भाई ये क्या है। आप अगर सोचो कि नहीं सब बाकी लोग उनको बेवकूफ़ बना देंगे, नहीं, बेवकूफ़ बनाना उन्हें बहुत टफ है, क्योंकि वो उस चीज़ को जानते हैं। तो वो कभी कभी बीच में क्वेश्चन, तो आपको उसको, वो क्या चाहते हैं उस चीज़ को, अगर उसमें कोई डिस्कशन हो रहा है तो आपको एडाप्टेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। इट मीन्स यू एबल टू अंडरस्टैंड, यू एबल टू एक्सेप्ट, अडॉप्ट चेंजिंग सर्कमस्टांसेस होना चाहिए, प्रायोरिटी किस चीज़ को देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, एंड रिक्वायर फ्लेक्सिबिलिटी। ऐसा नहीं कि आपको एक चीज़ से रिक्वायर, ऐसा नहीं कर पा रहे किसी चीज़ को आप अडॉप्ट नहीं कर, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। कोई भी चीज़ आ रही, आप कहो यस मैं इसको कर सकता हूँ और मैं इसमें काम करूँगा, और साथ ही साथ इसमें हम आप हर चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी है। किसी भी काम में उतारिए आप, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, मैं उसको काम को करूँगा और मैं कोशिश करूँगा उसको समझ पाऊँ। ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे टाइप की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको सॉल्व कर पाओ। नेक्स्ट है लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी इसलिए जरूरी है कि मस्ट मे बी कॉल्ड अपॉन द लीड, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट आते हैं, आपके बहुत सारे काम आते हैं जो कि आपके
और दूसरों के लिए कैसे आप मोटिवेट हो सकते हो। तो आपके अंदर स्किल है, बिकॉज आपकी स्किल है, वो चीज़ पढ़ाई गई है, तो आप ऐसा उसे लीड करिए जैसे जो आपको पढ़ाया गया है, जो आपने पढ़ के आए हैं, जो ट्रेनिंग में मिली है, तो उस स्किल को सही से यूज़ करना सीखिए। एक लीडरशिप क्वालिटी, कैसे आप पूरे डिपार्टमेंट को लेकर कैसे काम करेंगे, या फिर कहीं लोगों के बीच में है तो बिल्कुल न्यूट्रल होके कैसे काम करेंगे, एक लीडरशिप का क्या काम है अच्छे कामों के लिए, वो काम भी आपको यहाँ पर आना चाहिए। नंबर 7, कोलैबोरेशन। जैसे मैंने कल बताया था, कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन की बात करें तो यहाँ पर टीम मस्ट बी एबल टू कोलैबोरेट इफेक्टिवली एंड अदर्स टू अचीव द कॉमन गोल्स। कैसे कैसे कोलैबोरेट करें, और कोलैबोरेट किससे करना चाहिए, कहाँ से हमें आएगा, कैसे हम दोनों मिलकर उस गोल को कैसे अचीव करेंगे। तो इसमें आप लिख सकते हो, सिविल सर्वेंट ऑफन वर्क इन टीम। सिविल सर्वेंट often work in teams and must be able to collaborate effectively with others। एंड साथ ही साथ इसके साथ साथ कि अभी आपका जैसे कि किसी के साथ कर रहे हो, किस चीज़ के लिए, कि एक आपका कोलैबोरेशन का मतलब है कॉमन गोल है, उसको अचीव करना है, टू अचीव कॉमन गोल, कॉमन गोल। आपका जिसके साथ कोलैबोरेट किया है आपने, उसके साथ आपका बन गया। आप दोनों की ये नहीं कि सिर्फ मैं अपना अचीवमेंट रखूं, दोनों की अचीवमेंट यहाँ पर आ जाती है, दोनों साथ में चलती हैं। इसलिए यहाँ पर जब साथ में आएंगी तो यहाँ पर रिक्वायर करेगा कि अच्छे से काम कर पाओ दूसरे के लिए, और एक पॉजिटिव रिलेशनशिप क्रिएट करें, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड होगा। जैसे देशों के बीच में भी हो सकता है, जो आईएफएस का काम होता है ना, पॉजिटिव रिलेशनशिप, build positive relationship। ethical judgment, last point is ethical judgment। इथिकल जजमेंट की बात करता हूं मैं, तो इथिकल जजमेंट का मतलब है यहाँ पर, इथिकल जजमेंट, सिविल सर्वेंट आर इंटरेस्टेड with the significant responsibilities must be able to make ethical decision that serve the best interest to the public of the पब्लिक के साथ जो एक कम्युनिकेशन, जो उनके साथ कांटेक्ट में आए, वो एक बेहतर होना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह होना चाहिए कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर इंटरेस्ट, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक हो उसमें। और इससे इथिकली जजमेंट है वो स्ट्रांग होगा, और आप उस चीज़ को अपहोल्ड कर पाए, इंटीग्रिटी आपके अंदर आएगी, और आप चीज़ों को, जो गलत चीज़ें उन्हें होल्ड कर पाएंगे, बाकी चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, तो वो चीज़ें बेस्ट आपकी होती चल जाएंगी। देयर आर 8 सेक्शंस, ठीक है। अब यहां पर आते हैं, फाउंडेशन वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज क्या है। फाउंडेशन वैल्यू बेसिकली मैंने बताया था पहले, दिस इज अ कोर प्रिंसिपल एंड बिलीफ दैट गाइड द बिहेवियर एंड एक्शन आर एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन। ये सभी में, एक इंडिविजुअल है, एक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से है, देखा जाए तो एक ये आपको जो फाउंडेशन वैल्यू है जो आपको सिखाई जाती हैं, गाइड करती हैं, आपको अंदर ही अंदर इनर वॉइस के फॉर्म में आती हैं, और आपको गाइड करती हैं कैसे चीज़ों को करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, उस चीज़ को फाउंडेशन वैल्यूज ऑफ सिविल सर्वेंट सर्विसेज। Foundation value are the core principle and belief that guide the behavior and action of an individual or organization.
दोनों तरीके से आपको इसमें करती हैं। अब हर एक कॉन्टेस्ट में इसको देखेंगे, समझेंगे इंटीग्रिटी क्या है, कैसे कैसे चीज़ें आएंगी, इम्पार्शलिटी क्या है, इनसे ऑब्जेक्टिविटी क्या है, एम्पैथी क्या है, इन सभी चीज़ों को हमें जानना है, और कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा इसमें, बट आपको समझना भी बहुत ज़रूरी है और देखना भी बहुत ज़रूरी है, और अपने लाइफ से इसको रिलेट करना है। ठीक है, अपने लाइफ से रिलेट कर पाएंगे तो वो बहुत बेस्ट होगा, बहुत अच्छी चीज़ें होंगी उस पर। समझ आ रही चीज़ें, है ना? देख रहे हैं आप, समझ आ रहा है? कोई भी कोई ऐसा तो नहीं है जो चीज़ छूट रही हो, आपको समझ में ना आ रही हो कि नहीं सर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? देखिए क्या है ना कि यार आंसर ये एप्लीकेशन पे चल रही है या फिर इसी पे यूट्यूब पर भी चल रही है, दोनों भी जगह चल रही है, या फिर कैसे आप देख रहे हैं इसको, जिससे मेरी अगर वीडियो देख पा रहे हैं तो उसमें कमेंट कैसे आप लोग करते हो, कहाँ से आता है, वो थोड़ा सा एक दो लोग भी बता दें कि आप कैसे क्या हो रही हैं इसमें, तो जिससे मैं आपको कमेंट का या फिर मैं उस चीज़ को सही से एनालाइज कर पाऊँ, या फिर आप करते नहीं हो या देखते नहीं हो, चलो कोई नहीं। Foundation value of civil services. Foundation values are the core principle. Core principles and belief that guide the behavior and action of an individual or organization. ठीक है, तो यहाँ पर हम इस चीज़ को देखेंगे, फाउंडेशन वैल्यू ऑफ सिविल सर्विसेज, इस चीज़ को यहाँ पर हम समझ पाएंगे, इस चीज़ को यहाँ से हम देखेंगे, चीज़ों को बढ़ाएंगे। ठीक है, ओके। In the context of civil servant services, foundational values are guiding principles, जैसे मैंने पहले बताया, that inform that work of civil servant and help to ensure the act and best interests of the public. पब्लिक के साथ एक बेस्ट इंटरेस्ट रहे, कैसे कैसे चीज़ें उनके साथ एक कम्युनिकेशन बिल्ड कैसे कैसे रिलेशन कैसे बनाए, दिस इज द ट्रस्ट, इट बिल्ड द ट्रस्ट बिटवीन द पब्लिक एंड सिविल सर्वेंट। ये पब्लिक और सिविल सर्वेंट के बीच में एक ट्रस्ट जो है बिल्ड करने का काम करती है फाउंडेशन वैल्यूज। ओके, सो यहाँ पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर इसे बिल्ड करना है तो एक सिविल सर्वेंट के लिए क्या क्या जरूरी है, सिविल सर्विस में जब आप है तो उसके लिए बिल्ड करने के लिए क्या क्या जरूरी, इंटीग्रिटी जरूरी है। इंटीग्रिटी इसको हम डिटेल में भी समझेंगे। इंटीग्रिटी इट मीन्स बीइंग ऑनेस्ट एंड फेयर। नंबर एक। नंबर टू पे चलते हैं, नंबर टू इम्पार्शियलिटी। पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टीशनशिप। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, फेयरनेस सभी के लिए, फेयरनेस फॉर ऑल। फेयरनेस फॉर ऑल। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का देखा जाए तो इसका मतलब यहाँ पर जस्ट द फैक्ट्स, फैक्ट्स के बिना काम नहीं करना है। अभी हम इसके डिटेल बताएंगे, आपको समझना है, जस्ट द फैक्ट्स। नंबर नेक्स्ट नंबर इज 1 2 3 4, नंबर इज डेडिकेशन, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज।
पब्लिक सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट एम्पैथी, यहाँ पर 5 नंबर। एम्पैथी, सिंपैथी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 टॉलरेंस, टॉलरेंस, और ये सारी कंपैशन, लास्ट इज अंडरस्टैंडिंग एंड केयर। ठीक है, ये चीज यहाँ पर आ रही है। इसके साथ साथ इन चीज़ों को हमें एक एक करके इंटीग्रिटी से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस चीज़ को समझेंगे, तो जिससे आपको अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या क्या कैसे है, बीइंग ऑनेस्ट कैसे होगा, चीज़ें कैसे होंगी और कैसे चीज़ें बदलती हैं, उस चीज़ को भी हम देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले चलते हैं इंटीग्रिटी की बात करते हैं। इसमें कोई है नहीं क्या आज? क्योंकि क्वेश्चन आते रहते ना, थोड़ा सा एक इंटरेस्ट बना रहता है। ये आप रिकॉर्डेड देखते हो तो थोड़ा सा उसमें कहीं ना कहीं आपको जो कंफ्यूजन, ये जो प्रॉब्लम्स जो आती हैं, वो थोड़ा दूर होने में टाइम लगता है। लाइव क्लास में आप कभी भी देख सकते हैं। अब आते हैं हम इसमें कि इंटीग्रिटी की बात करें एज द मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री के हिसाब से देखें मिनिस्ट्री ने क्या दे रखा है इसके बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल इंटीग्रिटी इज डिफाइंड द वी हैविंग एन ओपन, कैसा इंटीग्रिटी का मतलब क्या? ओपननेस आपको होना, जो भी बोलना है सबके सामने, जो भी कहना है वो सबके सामने, नंबर 1 इंटीग्रिटी का पार्ट है। नंबर 2 इंटीग्रिटी फेयर। नंबर 3 फेयर के साथ साथ ट्रांसपेरेंट मैनर। ट्रांसपेरेंट मैनर, फेयर, ओपन, ओपननेस। और यहाँ पर इसकी चीज के लिए कैसे आप पब्लिक के साथ अपना वर्क करते हो, एंड वर्क विद पब्लिक विद ऑनेस्टी। ठीक है, तो ये चीजें हैं। इसमें से आप बहुत सारे लोगों का नाम ले सकते हैं भारत में, जैसे कि एक मोक्ष गुंधम विश्वेश्वरैया थे, उन्होंने भारत रत्न उन्हें मिला था। और इस चीज़ के लिए बहुत सारे ऐसे लोगों को इस चीज़ में मिला है, ट्रांसपेरेंसी इंटीग्रिटी की वजह से उन्हें इनाम दिया गया है। बहुत लोग आए हुए हैं, उनके नाम हैं अलग अलग। तो अब टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी की बात कर दी, तो इंटीग्रिटी की बात हो गई। अब अच्छा, मैं अगर बात कहूँ कि ये है क्या चीज़, मतलब ये ओपननेस क्या है, कैसे होता है, कैसे चीज़ें बदलती हैं, और ये क्यों, ऐसा क्या ज़रूरत है इसकी ओपननेस की, या चीज़ों को लेकर, या चीज़ें ऐसी बदलती हैं, या पब्लिक के साथ जैसे हम डील करा रहे हैं तो ये कैसे होगा। तो इस चीज़ को लेके हम यहाँ से थोड़ा सा और इसके टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी कौन कौन से? नंबर 1 इंटेलेक्चुअल एक्टिव इंटीग्रिटी। आपके हो सकता है आप इंटेलिजेंट बहुत हैं, तो इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी। नंबर 2 इंटेलेक्चुअल के बाद हमारी क्या जरूरत है? पर्सनल इंटीग्रिटी होना बहुत जरूरी है। पर्सनल इंटीग्रिटी, मोरल इंटीग्रिटी, और
मोरल इंटीग्रिटी के बाद मोरल इंटीग्रिटी, इतनी सारी हमारी इंटीग्रिटी है, सोर्स इसका कहाँ से आता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन से भी आता है और आप वो ऐसे भी देख सकते हैं। इसमें एक एक वन बाय वन हम इसको थोड़ा समझें, वन बाय वन इसको लिखने का ट्राई करें। तो इंटेलेक्चुअल, सबसे पहले चलते हैं इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी ये क्या होती है। व्हाट इज इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी, जानते हो आप क्या होता है? एक सेकंड आप रुकेंगे तब तक आप।
जैसे मैं आपको बता रहा था, इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी, मोरल इंटीग्रिटी, पर्सनल इंटीग्रिटी, सभी के बारे में मैंने आपको बताया कि अब इसमें हम बात करें अगर इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी की, पर्सनल इंटीग्रिटी, सभी के बारे में, मोरल इंटीग्रिटी, सभी के बारे में मैंने बता दिया। अब अगर मैं यहाँ पर इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी की बात करता हूँ, इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी क्या है, कैसी है, कैसी चीज़ है? आपके अंदर अगर इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी है तो आप ये सोचिए कि आपको उस चीज़ को समझना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि क्या चीज़ें हमें ज़रूरत है, क्या चीज़ें। एक इंटीग्रिटी का मतलब ओपननेस, फेयरनेस। इंटेलेक्चुअल का मतलब है कि आप उसे अपने ज्ञान से, अपने नॉलेज से, अपनी चीज़ों से कैसे उसे सॉल्व करेंगे, उस चीज़ को यहाँ पर हम थोड़ा समझेंगे। इट रिक्वायर्स बीइंग विलिंग टू स्टैंड अप फॉर योर बेस्ट जजमेंट। आप सबसे पहले हम इसमें ऐसा करके लिखते हैं, वो ज़्यादा इजी रहेगा। इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी, इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी की अगर बात करता हूँ, इट रिक्वायर्स बीइंग willing to stand up for your best, फॉर योर बेस्ट जजमेंट। आप अगर कोई काम कर रहे हो उसके लिए आपको समझना कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, कि जजमेंट है, और जजमेंट का ट्रूथ क्या है, सही क्या है, ट्रूथ ऑफ जजमेंट, जो आप बोल रहे हो, जो काम कर रहे हो वो कैसे होगा, और इसके लिए कैसे, क्या आपके पास आसपास जो अराइज हो रही चीज़ें उसके लिए ज़रूरत है, जो आप काम कर रहे हो, जो चीज़ें प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसे अगर सॉल्व करना है, तो यू शुड नो, यू मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, इथिकली क्या चीज़ें सही है, क्या नहीं है, क्या उसमें होना चाहिए, उस चीज़ को लेकर हम यहाँ पर आए। इसी को हम, अगर आपको लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल है तो आप एनालिसिस नहीं कर पाओगे, जजमेंट सही नहीं कर पाओगे। लैकिंग अगर है आपके तो वो चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ठीक है। जैसे सोक्रेटिस ने कहा है, सोक्रेटिस ने हमेशा कहा है कि अगर आप नहीं कुछ चीज मालूम है उसको, जो आपको डिनाई कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, उस चीज को समझना बड़ा जरूरी है। सोक्रेटिस का कहना है, सोक्रेटिस ने कहा, सोक्रेटिस वाज एन वन, कह सकते वाज एन एग्जांपल, वो एक ऐसा एग्जांपल था, आउटस्टैंडिंग एग्जांपल ऑफ अ पर्सन। क्यों? क्योंकि इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी उनके पास था, वो कमिटेड थे, और उस चीज़ को लेके कई बार ऐसा उन्होंने सुसाइड भी की है, सुसाइड भी हुआ उनकी वजह से, क्योंकि उन्होंने सुसाइड करना पड़ा, लोग उनकी बात को नहीं समझ पा रहे थे, उनके इंटेलेक्चुअल को नहीं समझ पा रहे थे, क्यों ऐसा कह रहा है, क्यों ऐसी चीज़ें बात आ रही हैं वो। तो यहाँ पर एक वो चीज़ें हैं, उन्हें मालूम था सत्य क्या है, उस सत्य को समझना सबके बस का नहीं था, सभी के पास उतनी इंटेलेक्चुअल नहीं थी, वो लैकिंग थी, जिसकी वजह से उनके उनकी नॉलेज को नहीं समझ पाए, उनकी चीज़ों को नहीं समझ पाए कि क्या एक्चुअल में है क्या नहीं है, उस चीज़ को समझना टफ था। दूसरा था पर्सनल इंटीग्रिटी। यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो लिख सकते, सोक्रेटिस was an example of a person। अगर आपको लिखना है थोड़ा सा याद रखने के लिए, वैसे मैं अभी थिंकर्स पढ़ाऊंगा तो उसमें पढ़ाऊंगा ही, वो ऑफ इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी, who was committed to pursuit of the truth,
knowledge and demonstrated it even the time of attack of on his integrity। तो वो सब इस चीज की उनको नॉलेज होती थी, लेकिन सबके पास इतना नहीं कि जो उनको समझ पाता। पर्सनल इंटीग्रिटी क्या है? इट इज अबाउट ऑर्गेनाइजिंग वंस डिजायर। आपको एक आपकी खुद की जो डिजायर्स हैं उसके लिए कितना कितना कमिटमेंट है, कितना आपकी वोलिटेशन है एंड वोलिशन, वोलिशंस कह सकते हैं, वोलिशंस एंड साथ ही साथ आप वैल्यूज कैसे क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो पर्सनल इंटीग्रिटी और साथ में प्रोफेशनल इंटीग्रिटी को लेकर। तो आपको ये समझना चाहिए कि मेरी पर्सनल इंटीग्रिटी क्या होनी चाहिए, प्रोफेशनल क्या होना चाहिए, उन दोनों चीज़ों में अंदर करना आना चाहिए। इतने इंटेलेक्चुअल हो कि आपको पर्सनल लाइफ को कैसे रखना है और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे रखना है अलग, दोनों चीज़ों को समझाना, दोनों चीज़ों को अलग रखना, वो आपको पर्सनल इंटीग्रिटी में आ जाता है। तो कह सकते हैं इट इज़ अबाउट ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग वंस desire, commitment, volition, values and actions in such way that there is no conflict between any one of them. When a person possesses personal integrity, and then various aspects of his self are fully integrated, होना बहुत जरूरी है। ये चीजें आपके अंदर पर्सनल इंटीग्रिटी, दैट इज कॉल्ड पर्सनल इंटीग्रिटी। इट रिक्वायर्स दैट अ पर्सन शुड कमिट टू सम कंसिस्टेंट ऑफ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। आपके कुछ के खुद के प्रिंसिपल्स होते हैं जिन पे आप काम करते हैं, जिनको आप बदलना नहीं चाहते, जिनके साथ आप जीना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड पर्सनल इंटीग्रिटी। आप उस चीज को होल्ड करके रखते हैं, लोगों के लिए अलग, फैमिली के लिए अलग, तो दैट इज कॉल्ड पर्सनल इंटीग्रिटी। अब आपके मोरल इंटीग्रिटी पे आ जाते हैं हम। moral integrity basically refers to consistency and honesty, refers to consistency and honesty in the application। in the application honesty in the application to standard of morality, are right or wrong, which is used for judging others as well as ourselves। अपने आप को दूसरों को जज करने के लिए आपके अंदर ये इंटीग्रिटी होनी चाहिए। आपके अंदर अगर ये चीजें हैं, कंसिस्टेंसी, ऑनेस्टी, एप्लीकेशन, जिससे आप दूसरे के मोरालिटी को या अपने आप को उसको समझ पाए, स्टैंडर्ड आपके अंदर है उस चीज को लेकर, तो आप उस चीज को सही से समझ पाएंगे, जिससे आप क्या क्या जैसे जिससे क्या होता है कि आप दूसरे के मोरल प्रिंसिपल को समझ पाए, क्या यार इसके समय इस समय क्या बीत रही होगी, क्या इसके मोरल्स होंगे, उस हिसाब से आप जज कर रहे हैं उस चीज़ को, अपने आप को जज कर रहे हैं दूसरे के सामने। तो वो एक क्वालिटी है, एक आपके इंटेलेक्चुअली आपके अंदर वो चीज़ें आ रही हैं, तो उसको मोरल इंटीग्रिटी कहते हैं। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि सोर्स ऑफ इंटीग्रिटी आता कहाँ से है और ये कैसे होता है? सोर्सेस ऑफ इंटीग्रिटी, सोर्सेस ऑफ इंटीग्रिटी, एक आपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक देखा होगा, आपने सही से समझने का अगर ट्राई किया होगा, तो एक डीपीएसपी है, उसमें चैप्टर है ह्यूमन राइट के बाद, फंडामेंटल राइट्स के बाद डीपीएसपी आता है। डीपीएसपी से आपको यहाँ से जो ये आपका अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन बात करें तो पार्ट 4A है इसका, और इसमें आपको आर्टिकल नंबर 51A में ये दिया गया है।
इसमें आप देखेंगे अपहोल्ड द सेफ गार्ड एंड द सोवर्निटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। भारत के लिए आप कितना आप रिस्पॉन्सिबल है, कितनी इंटीग्रिटी है आपके पास, कितना समझना है। इससे ये भी एक यहाँ से पार्ट आता है, ये डीपीएसपी हमें क्या सिखाता है, अपहोल्ड एंड सेफ गार्ड। दिस इज द डीपीएसपी uphold and safeguard the sovereignty and unity and integrity of India, which is given in Article 51A, is one of the fundamental obligations. There is also in inner consciousness. This is the best way uphold the idea, uphold ideas is always determined by one's inner conscience. एंड यूनाइटेड नेशन कोड ऑफ कंडक्ट जो है आपका काम करने का, वो भी वहाँ सिखाता है। यूनाइटेड नेशन ऑल्सो यूएन कोड ऑफ कंडक्ट, कैसे हमें पूरे वर्ल्ड में कैसे पीस लाना है, कैसे काम करना है, कैसे पब्लिक के साथ रिलेशन, वो चीज़ों को यहाँ पर सिखाता है। हर चीज़ के लिए यहाँ पर काम है, तो हम इन चीज़ों को यहाँ पर ध्यान देते हैं। ये बेसिकली इंटीग्रिटी का काम था। इंटीग्रिटी हमने यहाँ पर चीज़ें देखी, कैसे एक सिविल सर्वेंट के लिए कैसे जरूरत थी सारी चीज़ों को लेकर। अब इंटीग्रिटी के बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा था इम्पार्शियलिटी, ठीक है, सॉरी impartiality and नन पार्टीसनशिप, सॉरी, मैंने इसका मतलब मैं मीनिंग बताया था शुरू में ही। मीनिंग है इसका फेयरनेस फॉर ऑल, सभी के लिए फेयरनेस होना बहुत जरूरी है, सभी के लिए होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम इस चीज को भी यहाँ पर देख रहे हैं, इस चीज को भी यहाँ पर समझ रहे हैं, इन चीजों को हम यहाँ पर देखेंगे समझेंगे। तो आपको अगर कोई डाउट आ रहा है, कोई चीज समझ नहीं आ रही, तो आप यहाँ पर उस चीज को हम यहाँ पर कर सकते हैं, उस चीज को हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये इम्पार्शियलिटी समझ आ रही, किसी काम करने के लिए कैसे इम्पार्शियलिटी पे कैसे काम करेंगे, कैसे नहीं होगा। चलिए, इसमें फेयर कैसे रहना है, इसमें हो सकते हैं आपके पास कई सारी चीजें आ जाएं। जैसे आपको अगर फेयर रहने का सोचना है, फेयर रहने का देखना है, तो थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी चीजें आप लेकर आइए। ये कैसे क्या होगा, उसमें कैसे लेकर आएंगे उस चीज को मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपके पास कोई दबाव डाल रहा है, कोई आपका फ्रेंड आ गया, आपका दोस्त है, और आप उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं यार भाई, मैं कैसे करूं इस चीज को, मुझे समझ नहीं आ रहा। और चलिए, इम्पार्शियलिटी इज ए फैंसी वर्ड बेसिकली, देखा जाए फेयर के लिए एक नया वर्ड लेके आया गया है। इसका मतलब होता है फेयरनेस, लेकिन ये फैंसी वर्ड ले आएगा, इसमें ये नहीं है। नन पार्टीशनशिप मतलब है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के उसमें
पॉलिटिकल पार्टी कोई है उसमें और इस समय पावर पे है और वो आपको दबाव डाल रही है, लॉयल्टी आपको इन्फ्लुएंस कराना चाहती है कि आपकी जो लॉयल्टी है काम के लिए वो ठीक ना रहे, वो कहीं गड़बड़ हो जाए, वो कहीं अपने हिसाब से काम कराना चाहती है। तो कई बार ऐसा आती हैं चीज़ें आपके उसमें, कई बार आपको नुकसान करती है, कई बार आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है, कई बार ऐसा ऑफर दे देते हैं, कई बार ऐसा प्रेशर बनाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज या कोई भी ऐसा। तो उसमें आप क्या करें, अपने आप को उसमें बना कर रखें, उसमें अपने आप को एक सेट करके रखें, उसमें आपको ये ना लगे कि यार मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस जगह पे जा रहा हूँ, क्या ऐसा कर रहा हूँ जो मुझे ठीक नहीं लग रहा, या फिर मैं ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मेरी इंटीग्रिटी है, जो मेरी एक एक जो पार्टीशनशिप है, जो एक मेरी लॉयल्टी है, जो एक मेरी ऑनेस्टी है, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगी। अगर मैं इसकी बात मान ले रहा हूँ तो एक जो मेरी ड्यूटी है वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ होगी, और मुझे लोगों के बीच में जो एक पब्लिक और जो मेरे बीच में एक ट्रस्ट है, जो गवर्नमेंट के बीच में ट्रस्ट बनाया है मैंने कि आपके लिए हम खड़े हैं बिल्कुल फेयर के साथ, बिल्कुल फेयरनेस के साथ, वो कहीं ना कहीं आप लैक कर जाएंगे। तो वो चीज़ों के लिए है। इस नन पार्टीशनशिप मीन्स non-partisanship means the political party loyalty influences decisions, so government servants should treat everyone the same। मतलब ये है कि अगर आप इसमें नहीं आते हैं तो आपके लिए सभी गवर्नमेंट सर्वेंट का सभी का काम हो, चाहे क्लर्क से लेकर यानी फोर्थ कर्मचारी भी ले लो आप, जो झाड़ू लगाता है वहां से लेकर आपके हायर क्लास तक के जितने भी कर्मचारी हैं, उनको शुड ट्रीट एवरीवन द सेम, नो मैटर हु दे सपोर्ट पॉलिटिकल या आर व्हाट दे बिलीव इन। कौन करता है कौन नहीं करता, उस चीज को ना उसके माइंड में आए और उस चीज को ठीक करें। तो दैट इज पार्टीशनशिप। यही हमारा नॉन पार्टीशनशिप है। अब ऑब्जेक्टिविटी की बात आती है। ऑब्जेक्टिविटी क्या है? ऑब्जेक्टिविटी को अगर समझे हम थोड़ा सा यहाँ पर, ऑब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी मीन्स मैंने यहाँ बताया था जस्ट द फैक्ट्स। कई बार ऐसा होता है कि हम उसके मोह माया में फंस जाते हैं कि नहीं यार ये बहुत अच्छा इंसान है, देखने में बड़ा है, हमने इसे बचपन से देख रहे हैं, ऐसा कर ही नहीं सकता है। कई बार ऐसा होता है उस चीज़ का वो गलत फायदा उठाता है, कई बार गलत काम कर लेता है और आपको एकदम से समझ नहीं आती कि सही था कि क्या गलत था क्या नहीं था। उस चीज़ को लेकर कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं। तो उस वो जो एक फैक्ट्स के अनुसार हमें काम करना, डिसीजन हमें लेना है एक सॉलिड फैक्ट्स होना। सपोज करो कि आपका फ्रेंड है, या सपोज करो कि कोई ऐसा है, ये जूनियर है, जो कि आप उसे उसके घर आना जाना है, उसके साथ घूमते फिरते, उसके साथ पार्टी करते हो, सभी के साथ है, बट आपको लगता है यार नहीं और वो बंदा ठीक है, तो आप उसके सीधा उसके सपोर्ट में खड़े हो जाओ, हर चीज़ में उसको सही, और आप उसके और दूसरे के उसके साथ में खड़े होकर अपना भी करियर खत्म। नहीं नहीं, आपको कहना है कि आई नो यू आर माई फ्रेंड, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू चेक द फैक्ट्स, व्हाट यू डिड और नॉट। तो आपने क्या किया क्या नहीं किया, उस चीज़ को देखकर फिर मैं इसमें डिसीजन जाऊंगा कि क्या सही है क्या गलत है। अगर वो ठीक नहीं है तो मैं उस पर नहीं कर सकता हूँ। आप मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो, इस मैटर ये है, बट ये भी जरूरी नहीं है कि आप मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो तो मैं आपके लिए हर हमेशा उस टाइम पर खड़ा ही रहूंगा, या उस चीज़ को मैं खड़ा रहूंगा, लेकिन मुझे सॉलिड फैक्ट्स चाहिए कि व्हाई आई एम स्टैंडिंग विद यू, क्यों मैं खड़ा हूँ आपके साथ, क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्यों मैं आपका सपोर्ट करूं। उसके पीछे मैं सपोर्ट कर सकता हूं आपके कि मैं आपके साथ इतने से जुड़ा हूं, लेकिन अभी जो घटना हुई है उसका मेरे पास प्रूफ नहीं है कि आपने किया है कि नहीं किया। आप मुझे प्रूफ दीजिए नहीं किया है, मैं उस चीज पे बिहाफ पे आपसे लड़ूंगा। तो ऑब्जेक्टिविटी मीन्स मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन सॉलिड फैक्ट्स, सॉलिड फैक्ट्स एंड रियल इंफॉर्मेशन, एंड रियल इंफॉर्मेशन नॉट ऑन पर्सनल फीलिंग्स ऑफ ओपिनियन। आपकी पर्सनल फीलिंग ओपिनियन नहीं आनी चाहिए इसमें। पर्सनल तो देखो कई बार होता है ना कि यार मुझे लगता है वो मुझसे बड़ा प्यार करती है, लेकिन आपके पास प्रूफ क्या है कि वो प्यार करती है? पर्सनल फीलिंग नहीं लेके आना है। वो हो सकता है दूसरे के साथ प्यार करती है और आप उसके चक्कर में फिर बाद में उसको जाकर आप उसको हत्या कर देते हैं, उसके आप मार देते हैं उसको, क्योंकि आपको लगता था कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझसे करती होगी, फिर आपको दूसरे के साथ उसका देखा नहीं जाता, या उस समस्याओं को आप झेल नहीं पाते, आपको लगता है यार ये मेरे साथ धोखा कर रहा है, ये कर रही है। रीजन ये है कि जो उसे करना था वो कर लिया है, और आपके पास अगर फैक्ट्स है तो यू शुड, आपको छोड़ देना चाहिए कि ठीक है अपने हालत में चले जाइए, आपको क्या ही लेना देना है भाई, अब हो गया जो हो गया।
तो ये कई सारी चीजें आती हैं। इट्स लाइक अ बीइंग अ जज इन अ टैलेंट शो। ये एक ऐसा है जो एक टैलेंट पे आता है, परफॉर्मेंस पे आपके काम करता है, नॉट बिकॉज ऑफ योर फ्रेंड। ऐसा नहीं कि वो दोस्त है आपका तो उसके सपोर्ट में खड़े, जैसे सपोज करो कि मैं कह दूं कि चलो जस्ट द फैक्ट्स। अब सपोज करो रियलिटी शो है, कोई रियलिटी शो में इंडियन आइडल हो या कोई भी ऐसा देख रहे हो, बहुत सारी अमेरिकाज गॉट टैलेंट। तो जैसे आप उसमें जाइए, वो एक टैलेंट के बेस पे आपको उठाते हैं रखते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा दोस्त है तो इसको यार इन्हें कर लो और इसको विजेता बना दो, नहीं। आपको किसी के उसमें भाव में नहीं बहना है, किसी के उसमें नहीं जाना है, आपको उसको उस भाव में रखना है, उस चीज में रखना है। परफॉर्मेंस, उस परफॉर्मेंस के आधार पे उसको जज करना है, परफॉर्मेंस के आधार पे उसका रिजल्ट आना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिविटी, यू नो। तो आपको इसमें लिख सकते हो, इट लाइक अ बीइंग अ जज इन अ टैलेंट सो नेट एंड पिकिंग द विनर बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, नॉट बिकॉज दे आर फ्रेंड, दे आर कलीग, एंड दे हेल्प द गवर्नमेंट वर्कर्स मेक फेयर एंड इफेक्टिव डिसीजन। ऐसे अगर जस्ट फैक्ट्स के साथ अगर देखते हो तो आपको ये एक गवर्नमेंट के साथ जो काम कर रहे हो वो आप फेयर होगा और वो चीज़ें इफेक्टिव डिसीजन आपके होंगे और उसमें आप किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये चीज़ें आपकी हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है, इससे एक आपकी बहुत अच्छी एक रीच पहुंचती, बहुत सारी चीजें अच्छी होती हैं और आप अच्छा काम कर पाते हैं। अब आते हैं डेडिकेशन वाले पार्ट पे। डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस इसका मतलब डेडिकेशन आपका रहेगा ना, तो गोइंग एक्स्ट्रा मील, इसका मीनिंग है गोइंग एक्स्ट्रा मील, एक्स्ट्रा माइल। आप एक्स्ट्रा माइल चल जाए। अगर आपको देखो क्या है, कोई भी काम के लिए गए, अगर आप जैसे पढ़ने का है, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर डेडिकेशन नहीं है तो आप प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। अब चीजें वहीं का वहीं रुकी रहेंगी, एक ही जगह पर रुक जाएगी। और अगर आप डेडिकेटेड हैं तो 100% आप उससे क्वालिफाई करेंगे करेंगे, आप ही नहीं तो कल कर पाएंगे। लेकिन आपको डेडिकेशन है, उस चीज़ में लगे हुए हैं बिल्कुल एकदम, कि नहीं करना है तो मुझे यूपीएससी क्वालिफाई करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। डेडिकेशन होता है तो आप यूपीएससी में अपनी सुबह शाम तक आपको कुछ दिखाई नहीं देता, काम पढ़ना पढ़ना और अपनी खाना पीना पढ़ना, और सोशली आप दूर होते हैं। जब हाँ आप जब सिलेक्ट हो जाते हो तो आप सोशली इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी होता है, सोशल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब तक आप उसमें नहीं है उस चीज़ में, तब तक आपको क्या है, डेडिकेटेड होना है अपने काम के लिए, अपनी चीज़ों के लिए। आपने यूपीएससी एस्पिरेंट मूवी देखी होगी या वेब सीरीज आई हुई है, तो उसको आप देखेंगे एक बार तो आपको समझ आएंगी चीज़ें। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए। डेडिकेशन से क्या फ़ायदे हैं, डेडिकेशन से क्या, डेडिकेशन टू द पब्लिक dedication to the public service is all about caring for and committing to helping through job in the government. It's being like a part of team. एक टीम है जिसका एक गोल है और उसको सही करना है। सपोज स्पेशली आप अपने लिए, या अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो आपका एक गोल है, उस गोल को पाने के लिए आपको डेडिकेट होना पड़ेगा। वही चीज़ है, आप जब बन जाएंगे तो आप पब्लिक सर्विस, आपका एक गोल होना चाहिए कि मुझे इसके लिए केयर करना है, इसके लिए हेल्प करना है लोगों को जो इसकी ज़रूरत है, जो इस पॉलिसी के लिए, इस योजना के लिए जिसे ज़रूरत है, वो चीज़ मैं वहाँ तक पहुँचा रहा हूँ बिना किसी के दबाव से, बिना किसी के इंटरफेयर के। मैं वहाँ तक उस चीज़ को सही जगह पर कर पाऊँगा। देखो आजकल बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री शहरी विकास योजना हो, प्रधानमंत्री जो भी हमारी सारी चीज़ें आ रही हैं, किसी चीज़ के लिए किसान योजना है,
कोई भी ऐसा है, तो उस किसान समृद्धि, उसमें क्या है कि आपके प्रधान का काम होता है, आपके प्रेसिडेंट का काम होता है वहाँ के पास का, और आप जैसे डीएम साहब हैं, आपको मालूम है कि कोई ऐसी सिचुएशन आ रही जहाँ लोगों तक नहीं पहुँच पाए, तो वो सर्वे करें उस चीज़ को, वहाँ पर जाएंगे और वो सभी के लिए कि भाई इसकी नीड थी, इसको क्यों नहीं मिला इस चीज़ को, तो उस चीज़ को सही से इम्प्लीमेंट कराया जाए, उस चीज़ को सही से, क्योंकि वो पब्लिक के लिए ही डेडिकेटेड है कि मैं पब्लिक में सुधार कर पाऊंगा, इस बार करूंगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं, इस चीज़ों को हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अब इसमें इसी के साथ साथ एक चीज हमारी जो एक इम्पैथी सिंपैथी है, तो और इसके साथ साथ एडिशनल फाउंडेशन वैल्यूज जो हमारी हैं इसमें कौन कौन सी आएंगी, इसके बारे में हम कल स्टडी करेंगे। यहाँ तक के लिए हमारे ठीक है इस पार्ट को। अभी ये हमारा कल थोड़ा सा इसमें नोलन कमेटी, इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, नोलन कमेटी है, और ये कल हमारा ये चैप्टर अभी कल और भी चलेगा। इस चैप्टर के बाद फिर हमारी चीज़ें बदलेंगी, जैसे हमने इसमें फाउंडेशन वैल्यूज़ की मैंने बताई ही बात, तो ये हमारा आएगा। फिर इसके बाद हमारे जैसे ख़त्म हो जाएगा, फिर हम इमोशनल इंटेलिजेंस में भी कल ऐसा हो सकता है कि हम इसमें कूद जाएं, इस चीज़ में इमोशनल इंटेलिजेंसी में पहुंच जाएंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस जब हम पूरा करेंगे तो 1-2 दिन लगेगा, 2 क्लासेस में भी कल इमोशनल इंटेलिजेंस, तो नेक्स्ट वीक में हम मोस्ट मोरल थिंकर्स और इनके बारे में भी स्टडी करेंगे। फिर हम सिविल सर्विसेज वैल्यूज़ जो हैं और प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस एंड इन सब चीज़ों के बारे में लगभग लगता है ऐसा 1 वीक और इसमें रहेंगे, 1 से 2 वीक इसमें चलेंगे। देन इसके बाद फिर हम केस स्टडीज़ में आ जाएंगे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो कोशिश है कि हम दिसंबर के फर्स्ट वीक तक इसे कंप्लीट करेंगे। तो आपको थोड़ा सा पढ़ना भी है, और नोट्स जो रहेंगी, तो कल जैसे क्लास कंप्लीट होगी इसके बाद संडे से पहले पहले मैं नोट्स आपको सारी शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है इसकी, तो जिससे आपको इजीली उस चीज़ को आप कर पाएंगे, इजीली उस चीज़ को समझ पाएंगे। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।